శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
గట్టిగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సిందే కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తేన్నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణుః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే వరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధో అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య శ్రేయఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతికిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచల నివాసినః శ్రీ భూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీనివాసస్వామి కైంకర్య రూపం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. అట్లే మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకుని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ పిల్లల నామధేయములని స్మరించుకుని మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామివారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సంపూర్ణ కృపాకటాక్ష వీక్షణసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్యసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూలసిద్ధ్యర్థం సర్వలోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవాంగం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త భగవచ్చాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి అర్పితమస్తు.
ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் என்று விஷ்ணுவின் புகழை செவியார கேட்பதும் அவனுடைய கல்யாண குண வைபவங்களை வாயார பாடுவதும் அவன் நாமாவை மனமாற நினைப்பதும் அவனுக்கு திருத்தொண்டு செய்வதும் அவனை புஷ்பத்தால் அர்ச்சிப்பதும் அவன் தாழினை தலையால் வணங்குவதும் அன்பால் மெய்யுருகுவதும் மனதால் தியானிப்பதும் அவனுக்கு அடிமை பூண்டு வாழ்நாளை கழிப்பது நமக்கு நிலையான பேரின்பங்களையும் சகல சௌபாகியங்களையும் தந்தருளும் என்பது அவனது பொன்னான திருநாமத்தின் பிரபாவம் அன்றோ? பக்தர்களே, ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை இதோ திருக்கல்யாண வைபவத்திலே செவித்து கொண்டுள்ளோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். நாமும் கூட நமது வீட்டில் இருப்பவர்களுடைய கோத்திரம் நாமம் மற்றும் சொல்லிக்கொண்டே நாமும் கூட அந்த சங்கல்பத்தை செய்து கொண்டோம். அதை தொடர்ந்தாற்போல் சேனநாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. சேவிப்போம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்பது வேத வாக்கு. நாராயணா என்று அவன் திருநாமத்தை ஜபிப்போருக்கு நலமெல்லாம் பொங்கி பெருகும், நாளெல்லாம் இன்பம் தங்கும். இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவெங்கடமுடையான் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக கேட்டவரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக அருள் வடிவனாக அலங்கார ரூப சுந்தரனாக எழுந்தருளி இருக்கும் இதோ திருமலையிலிருந்து தேரடி முனீந்திரான் சர்வாணம் குலகுரோன் பிரணமாமி மூர்த்தனான் யஸ்ய திவிரத வக்ராத்யஹ பாரிஷத்யஹ பர்ஷதம் விக்னம் நிக்னந்தே சததம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரயே शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं सुदर्शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं श्रियासमेतः श्रीपरमहंसस्वरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः. श्री श्रीनिवास गुरवे महते नमोस्तु. एवं गुरु परंपरा ध्यात्वा प्राणानायम्य ओम भू श्री गोविंद 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 महाविष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्यास्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सव कर्मणि सद्योऽङ्कुरार्पण प्रतिसरबन्ध देवताराधना आघार कर्म माङ्गल्याराधना धारणा प्रदान लाज पूर्णाहोमादि सर्वकर्मसु सर्वोपनिषुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षरार्थं शुद्धि पुण्यवचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्यमाणः ततङ्ग कलशाराधनं करिष्ये. ओम धारा सुसप्त सुचमानसेषु सरस्सरित्स परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुसर्मान् इदमा पश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमः पूतः पूततमः पुण्यः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलमभ्यर्च सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभवहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः. ॐ एते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञाः पाशा वितताः पुत्रान् तेभ्यो इन्द्रस्य व्यतोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु भरतस्वस्त्या. ओं करके पाञ्चभौतिकमावहमे जले सर्वतीर्थजलमावहमे मुखे विष्णुं मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमे कुम्भे ओं भूः वरुणमावाहमे ओं भुवः प्रचेतसमावाहमे ओकुं सुवः रक्तामृतमावाहमे ओं भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावाहमे गङ्गाति सर्वतीर्थजलाय नमः वरुणाय नमः इदमासं
पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि चितक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि गङ्गादि सर्वतीर्थजलाह्मा वृणाह्मा सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भूतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकलविबुध प्रौढसैन्यादिनाथं मुद्राचक्रे करतलिगे शङ्खदण्डौ तथाणं मेघश्यामं सुफटिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं सूत्रपति जगासमेतं पद्माकारमण्डले ॐ भूः विश्वक्सेन समावाहमि ॐ भवः शान्तमावाहमि ॐ सुवः हरमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि नित्य अनपायनमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रपतिम् आवाहमि वामे जयाम् आवाहमि सूत्रपतिं जयासमेतां श्रीविश्वक्सेन स इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपति जयासमेत श्री विश्वक्सेनाः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचितां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुं त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्या ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पथे इन्द्रस्य युज्यसखां तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षुरातदं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा च नरस्य प्रंशत द्रविणोदा वीरवते विषण्णो द्रविणो धारासते दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुवशसा मेत्यग्रे भागन् देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते अत नक्षत्रं नयते सूर्यो गच्छेत यत्र च घन्यं पश्येत तावत् कुर्वेत यत्कार्य स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थम् पुण्यहं भवन्तो वैवाहिमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थम् ॐ पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवलोकितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओगं स्वस्ति रुद्ध्या स्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रध्ययन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीविमशरदः वीराः त्रीणि वे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसे त्रीणि सवनानि त्रयैमे लोकाः रुद्ध्यामिव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ॐ पुण्याहं वृद्धिः समृद्धिः ॐ आपोहिष्ठामयो भवः स्थानवोर्जददातनान् मेरणा यचक्षसे यो वश्यवत मोरसः तस्य भाजयते अनः उशतेरव मातरः तस्मा अरङ्गमाम्बवः यस्य क्षचिन्वत आपोजनदाचरः पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतासु पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तमनबोध्यान् पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाह्यवान् शुक्रेण देवतेदितु अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिः अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः
तया वदन्तः सतमाद्येषु वयज्ञस्याम पतयोरैनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतां भ्रोद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षये पुराहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पौमाने रध्येते ऋषभिः संभृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पौमानेर्यो अध्येते ऋषभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पौमाने स्वस्त्ययनिः सुतुघाहे पयस्वते ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पौमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्थयन्तु नः देवेर्देवे समाभृताः पौमाने स्वस्तयनिः सुतुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पौमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुरीमहे इन्द्रः सुनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वर्णः समीच्या यमो राजा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम प्राच्यां दिशि देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गुहा पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्या पपोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो जरातरिः नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तोष्पते प्रतिजाने अस्मास्त्वा वेसो अननीवो भवानः यद्वे मे प्रतितग्नो जुषस्वशन्मयेति द्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पते सगमया सगं सदाते सक्षिम हिरण्मया गातुमत्या आवह क्षम उतयो जेवरन्नो यूजं पातस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाणि अर्षन् सखास्वेवये दिनः शुभगं शुभं विश्वक्सेन महाप्रणम पुनःपाद्या च मनीयं सोऽप्यं सुप्रीता सुप्रसन्न वरतो भवतु यदास्तां विदास्तं प्रवेशयम् उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमत् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः என்று இதோ மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் நாம் செவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். பக்தர்களே, பகவானின் 10 அவதாரங்களில் அதிக மக்களால் அறியப்பட்ட அவதாரம்தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம். சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கும் சக்தி கிருஷ்ணனுடையதல்லவா? அப்படி இருந்தாலும் கூட அவனை பற்றிய பெருமைகளை முழுவதும் பலர் அறிய மாட்டார்கள். கண்ணன் என்ற சிறப்பு பெயரை கொண்டவன், நம்மை கண்ணை போல் காப்பவன், கண்ணுக்கு கண்ணாக இருப்பவன், கண்ணன் என்று அழைப்பது பொருத்தம்தானே. கண்ணன் என்பவன் யார் என்று நமக்கு விளக்கம் வகையில் பாடியுள்ளார். வெண்ணையை தெரிந்தே திருடி தின்ற கண்ணனின் கோபிகைகளின் இல்லங்களில் விளையாட்டுகள் அனைத்தையும் தெரியும். கண்ணனின் திருவடிகள் தங்களின் இல்லங்களில் பட வேண்டும் என்று கோபியர்கள் விரும்பினார்கள். அவனது ஒளி வீசும் அழகிய முகத்தினை காண ஆவலுடன் இருந்தனர். அதற்காக கண்ணன் தங்கள் இல்லங்களில் வெண்ணெய் திருடி உணவர மாட்டானா என ஏங்கி கிடந்தனர். புல்லாங்குழல் ஊதும் புன்னகை தவழும் முகத்திற்கு யார்தான் மயங்க மாட்டார்கள்? ஜனங்களையும் உலகத்தினையும் வயிற்றில் வைத்திருப்பவனை பாருங்கள் என்று கூறுகின்றனர் பக்தியால். பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட மகாவிஷ்ணுவையும்
இரு தேவியருடனும் பாம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கும் கோலம். அதில் மகாவிஷ்ணுவின் நாபிக் கமலத்திலிருந்து பிரம்மா சேவிக்கும் தோற்றத்தில் காணப்படுவார். உலகையே படைக்கும் பிரம்மவை தன் நாபியில் வைத்துள்ளதால் வயிற்றில் மக்களை அவர் வைத்திருப்பதாக கூறுகின்றனராம். கண்ணன் விஷ்ணுவின் அவதாரமே அல்லவா? அப்படிப்பட்ட கண்ணனான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் இதோ நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். பக்தர்களே, இதோ அந்த மண் பாணிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதோ இனி அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ரக்ஷா பூஜை என்றால் நாகராஜனை, அதாவது ஆதிசேஷனையை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதோ சேவிப்போம். அதை தொடர்ந்தாற்போல் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்த ஓம் புஷ ஷமாவஹமி சஹரே ஷமாவஹமி நாகராஜமாவஹமி அனந்தமாவஹமி சேஷசேதமாசனம் பாத்யம் சோர்ப்யாமி ஆர்க்யம் சோர்ப்யாமி ஆச்சமனியம் சோர்ப்யாமி புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி தோபதீப சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதம் சோர்ப்யாமி குடோபர்நிவேதம் சோர்ப்யாமி பானியம் சோர்ப்யாமி சுதக்ஷணாகம் தாம்பூலம் சோர்ப்யாமி சேஷாயமः சுப்ரீதः சுப்ரசன்ன பரதோ பவதோ ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதீதரர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் அசுரோ ததாது ந ஸ்வஸ்தி த்யவா பிருத்திவி சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தே உபப்ரவாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தே பவானஸ்ய யஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वागं स्वस्ते स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देव अवन्तु भवः स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कुधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आदिवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता संघामि महीं स्वस्तयनन्तारक्षमरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरज्ञमिन्द्रासकं समत्सु प्रद्य शोणवामि वारुहेमाम् अम्होमुचा माङ्गिरा संघं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तारक्षम् प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भाते स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஒளிவில்லா காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வலுவில்லா அடிமை செய்ய வேண்டும் தெரிக்குறள் அறிவித்திருவெங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். அப்படி மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம், அதாவது ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல் என்று அர்த்தம். அப்படி மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டங்கள். அப்படி அந்த கஷ்டங்கள் வரும்போது நாம் மிகவும் நொந்து போய் அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கிறோம் அல்லவா? அப்படிதான் குசேலன் என்கின்ற சுதமன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பகவானுடைய உண்மையான நண்பன். இவருக்கு வறுமை ஏராளம். அதற்கேற்றாற்போல் வீட்டில் அதிக சந்தானம் வாழ்க்கையை நடத்துவதே ஒரு பெரிய பாரமாக இருந்தது. அவருடைய துணைவியாரும் மகா சாத்வி. இருந்தும் எப்படியோ வறுமை ஜெயிக்க முடியாமல் திண்டாடினார். இதற்கு காரணம் சுதாமனின் முன் ஜென்மமே காரணம் என்கிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் சுதாமனும் சாந்திபனி என்ற முனிவரிடம் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்தார். பரந்தாமனுக்கே கல்வி கற்க வேண்டும், அவருக்கு ஒரு குரு தேவை என்றுதானே அவரும் வந்தார். ஏன் வந்தார் என்று தெரிந்து கொள்வோம். ஒரு நாள் குருவின் மனைவி கோரிக்கையின் போரில் குசேலர் கிருஷ்ணர் இருவரும் காட்டிற்கு சென்று விறகுகளை எடுத்து வர சென்றனராம். திடீரென்று அதிக காற்று மழை வந்துவிட்டன. வழி தப்பினார் இருவரும். இருட்டி விட்டது. அதனால் அங்கேயே இரவு தங்கிவிட்டார். கிருஷ்ணரும் தூங்கிவிட்டார்.
குசேலனுக்கு பசியினால் தூக்கமே வரவில்லை. தன்னிடம் இருக்கும் கடலையை கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்காமல் தன் ஒருவனே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான். குசேலா என்னவோ சாப்பிடுவது போல் சத்தம் வருகிறதே, எனக்கு கூட கொஞ்சம் குடு என்றாராம். ஐயோ, ஒன்றும் இல்லை, காற்று அதிகமாக வீசுகிறதல்லவா, அதனால் பற்கள் ஆடிக்கொண்டு சத்தம் செய்து கொண்டுள்ளது என்றான் குசேலன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அனைத்தும் தெரியும். தான் சாப்பிடும்போது உடன் இருக்கும் நண்பனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கவில்லை, அதனால் அந்த பாவத்திற்கு பலித்தம்தான் இப்போது அந்த வறுமை தாரித்ரியம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்று தெரிந்தது. அப்படி நாம் ஆகாரம் சாப்பிடும்போது நம்முடன் இருப்பவர்களுக்கு கொடுத்தால் அது புண்ணியம். தன் சுயநலத்திற்கு மட்டும் விநியோகித்துக் கொள்வது மிகவும் பாபம். புண்ணிய பாவங்கள் பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லவா? நம் கலாச்சார முறையில் நாம் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ஒரு கவலம் முதலில் சுவாமிக்கோ அல்லது நைவேதனம் செய்தால் நமக்கு நல்லது என்று பெரியோர்கள் கூறுவார்கள். அப்படி அந்த குசேலன் அனுபவித்ததை பார்த்து அவருடைய பாரியை சென்று அவளுடைய மனைவி சென்று கிருஷ்ணரிடம் உதவி கேட்க சொல்ல அதை மறுத்தான் குசேலன். மனைவியின் வற்புறுத்தலின் பேரில் அவன் மூட்டையை கட்டிக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமே சென்றான். சிறிது நேரம் சென்றதும் அவனால் நடக்க முடியாமல் கால்கள் தடுமாறின. சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு மரத்தின் கீழ் சாய்ந்தானாம். அந்த பரமன் அனைத்தும் அறிந்தவன் அல்லவா, சர்வபூத சம்ரக்ஷகன். அப்படிப்பட்ட அந்த சம்ரக்ஷகனுக்கு இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி கிருஷ்ணனாக கண்ணனாக அவதாரம் எடுத்த இந்த கலியுகத்தில் பெருமாளுக்கு, திருவெங்கடத்து எம்பெருமானுக்கு அர்ச்சக்கர் சுவாமி அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சேவிப்போம். துவாரகை இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று கேட்க, இதுவே துவாரகை என்று கூறினாராம். தன் பால்ய வயது நண்பனை சந்திக்க போகிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் உள்ளே நுழைய முயற்சி செய்த போது அங்குள்ள காவலர்கள் அவரை தடுத்து நிறுத்தினார். பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஓடோடி மகத்வாரம் அருகில் வந்து, குசேலா வந்தாயா, எத்தனை நாளானது உன்னை பார்த்து என்று அன்புடன் அழைத்து சென்று ருக்மிணி அருகில் அமர வைத்தாராம். ருக்மிணி தேவி குசேலன் கால்களுக்கு நீரூற்ற கிருஷ்ண பரமாத்மா கால்களை கழுவி நீரை தலைமேல் தெளித்து கொண்டார். அங்கு கூடியிருப்பவர்கள் கிருஷ்ணருடைய பக்தியை பாராட்டினார். குசேலனுக்கு சாப்பிட நிறையவற்றை அளித்தார். மறுநாள், இவ்வளவு தூரம் வந்தாயா, எனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கவில்லையே என்று கிருஷ்ணர் கேட்டார். தானே குசேலன் தோல் மீது இருந்து அவள் மூட்டையை அவிழ்த்து வாயில் போட்டுக்கொண்டான். மீதியை ருக்மிணி வாங்கி கொண்டாள். ஏனென்றால் அவள் என்றால் அவருக்கு மிகவும் இஷ்டம். அதனால்தான் அந்த ஒரு பிடி அவளையே குசேலன் ஸ்ரீமந்தன் ஆனான். அவருடைய வாத்சல்யம் அப்படிப்பட்டது. பக்தர்களே, ஒரு பிடி அவள் தின்றதாலே ஆக இரண்டாவது சாப்பிடும்போது எவ்வளவு அவனோ என்று ருக்மிணி தடுத்தாள் அல்லவா? அப்படி அந்த குசேலனுக்கு அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் கருணை கடாட்சவித்தான். ஸ்ரீமன் நானான கஷ்டங்கள் வரும்போது உதவி பண்ணுகின்றவன் தான் உண்மையான நண்பன் என்று சத்தியத்தை உணர்த்தியவன் அந்த பரந்தாமன். அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமன் ஸ்ரீ வெங்கடமுடையானுக்கு இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார். முதலில் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தார். பின்பு அர்ச்சக்கர் சுவாமி பகவானுக்கு என்னென்ன பூஜை முறையை செய்தாரோ அதே ஷோடச உபச்சாரத்தை இதோ தேவிமார்களுக்கு செய்த பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பிறகு பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயாருக்கும் செய்து கொண்டுள்ளார். இதோ அந்த ரக்ஷையை இன்னும் சற்று நேரத்திலே அணிவிக்க உள்ளார். சேவிப்போம். இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவேங்கடமுடையான் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக, பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக, கேட்ட வரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக, அருள் வடிவனாக, அலங்கார சுந்தர நூப்பனாக, திருப்பதி என்னும் திருமாமலையை தமது விஜய ஸ்தானமாக நித்திய வாட்ஸ்தலமாக கொண்டு கோயில் கொண்டுள்ளார். இந்த திருமலை என்பது ஸ்வயம் பக்த க்ஷேத்திரம், அதாவது பரந்தாமனே விரும்பி எழுந்தருளிய க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் நித்தியவாசம் புரியும் இந்த திருமலையில் நித்திய தோரணம் பச்சை தோரணம், நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப வருஷம் 365 நாட்களும் திருவிழா கோலம்தான். அந்த திருவிழா கோலத்தில் ஒன்றான இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை நாம் தினந்தோறும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிக்கிறோம் அல்லவா? அப்படிப்பட்ட மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை இதோ பூர்த்தி செய்கிறார். அர்ச்சக்கர் சுவாமி கூட அவரது
திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார். பக்தர்களே, அடுத்த கைங்கரியமாக நாம் சேவிக்க இருப்பது அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் போன்ற நிகழ்வுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இதோ இந்த திரையின் வழியே சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிப்போம். शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इंद्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरूतिवे शुद्धो अर्घ्यं निधार्य आर्यं शुद्धो रत्र आने दाशे शुद्धो वृत्रान् जिग्नसे शुद्धो वाचं शासे कुंडे सोम अवाहमि मयि देवा द्रविडमायन्तं मयि आशिरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतारावरिषन्त पूर्वरिष्टस्य मतनवासवीराः बरिषु सप्तऋषीन् अवाहमि उद्धन्यमानमस्य मेद्योपापनं यजमानस्यन्तु शिवानः सन्तु प्रतिसच्यतश्रसन्नो माता पृथिवीतोकसतः खपितॄन् अवाहमि रेखायं स्कन्दमावहि रेखा गायत्र्या प्रोक्षा तत्स विद्रवरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जातवेतनं गृहीत्वा गुरुतप्रज्वाल्य उपावरोहित अग्निधाय उपावरोह जातवेत पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं आयु प्रजाग्मरी मस्मासु देहजस्तुरोदीदिहनो धुरणे अग्निग्रहणपादे सदल पुष्पाक्षतान् क्षपेत अग्नि आयाहि वितये गुणानो हव्यदातेन होता सत्यवर्गिषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवित प्रसुवान् तत्स वितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मचे ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो धेनावः स बुद्र्या उपमा अस्य दिष्टा सतश्च योनि मसतश्च वः ॐ भूः ब्रह्माणमावाहमि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहमि ॐ स्वः पितामहमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमाथं सोमो दीर्घं सोमो अर्वन्तमासुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु सात्यज्ञं विसत्यं सध्यं पितुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भूसमावाहमि ओं भुवरेज्ञांगमावाहमि ओं सुवरिन्दुमावाहमि ओं भूर्भुवश्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणिमापाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षणाकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमहापाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षणाकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षेकं देवताबद्धयत्वं नाकस्य पृष्ठयजमानस्त्वं सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानन्तिः ॐ प्रोक्ष कृष्णो अस्याखरेष्ठो अग्ने त्वा स्वः वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिरसि स्तुभ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषयत्वा सुधा पितृभ्याम् ऊर्ध्वपरिषद्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरे भवेते पूषाते ग्रन्थिं विशतो आदित्यव्यञ्जमसि स्वसस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो इत्यर्व्यञ्जमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो दत्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहि सदा विष्णुमावाहि व्यापे नारायणमावाहि सुरुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुद्धस्वा ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि परिपात्र्यो ब्रह्माणम् आवाहमि सोममावाहमि ब्रह्मण्डम प्रणेश यजमानवाचिं च सोमापः प्रणेश यजमानवाचिं च प्रणग्देवताबद्धयत्वं नाकस्य प्रत्ययजमानत्वं सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानन्तिः ॐ प्रिया को वप्रतो स्वप्नत्वापो देवी प्रणयनग्निकं सकं साधयन्तः इदं वदन्तिर्गुतपृष्ठा उदावकुशास्त्रपोषं यजमानीयनिञ्चतिः को वो इनक्तिसवो इन्तो शमिशन्तान् देवीर्षापात्रान् देवजें शमिशन्तान् देवीर्षापात्रान् देवजें दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणतीर्थेन ओम प्रजापतिम आवाहयामि ओम इंद्रम आवाहमि ओम अग्निम आवाहमि ओम सोमम आवाहमि उत्तरप्रदेशो दैवतीर्थेन ओम अग्निम आवाहमि ओम सोमम आवाहमि ओम अग्निशोम आवाहमि ओम प्रजापतिम आवाहमि ओम ब्रह्माणम आवाहमि ओम इंद्रम आवाहमि ओम वसूनाम आवाहमि ओम मरुत आवाहमि ओम रुद्रानाम आवाहमि अपस्पर्श्य ओम विष्णुम आवाहमि ओम बृहस्पतिम आवाहमि ओम मित्रम आवाहमि ओम वरुणम आवाहमि ओम आदित्यानाम आवाहमि अश्विनाम आवाहमि पूषणम आवाहमि कक्षमावाहमि कक्षदेवत सोममावाहमि औपासने यज्ञमावाहमि यज्ञदेव विश्वान् देवान् आवाहमि सर्वदेवान् आवाहमि आज्यभागे ओम प्रजापतिष्टुपामि ओम इन्द्राष्टुपामि ओम अग्निष्टुपामि ओम सोमष्टुपामि ओम अग्निष्टुपामि ओम सोमष्टुपामि अग्निशोमाभ्यागुष्टुपामि ओम प्रजापतिष्टुपामि ओम ब्रह्मणेष्टुपामि ओम इन्द्राष्टुपामि ओम वसुभ्योष्टुपामि मरुद्भ्योष्टुपामि रुद्रेभ्योष्टुपामि अपस्पर्श्य ओम विष्णुष्टुपामि बृहस्पतिष्टुपामि मित्राष्टुपामि वरुणायष्टुपामि आदित्येभ्योष्टुपामि अश्विभ्यां ष्टुपामि
पूष्टेजुष्टुपमे कक्षाजुष्टुप कक्षदेवत सोमाजुष्टुप औपासर यज्ञाजुष्टुपमे यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टुपमे सर्वदेवेभ्योजुष्टुपमे आजन्तुरुप्यसमे चिरन्तुरुप्यसमे अग्नेर्ज्योतिषे समिति स्वाम अमृतम से वरुण से अंतरितम रक्षो अंतरित अराते स्वाहा प्रत्युष्ट रक्ष प्रत्युष्ट स्वाहा चिक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विश्वाहा देवस्वा सविता पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विश्वाहा गतसमित प्रोक्ष एकविंशति प्रमाणः कर संपूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् इमाम्य अग्निष्टिका चरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका अग्निष्टिका देनवसन्त वेगचंच सहस्रंच आयुतंच वियुतंच प्रयुतंच अर्बुदंच अन्युर्बुदंच समुद्रस्य मध्यंचान्तस्य परार्धस्य इमाम्य अग्निष्टिका देनवसन्तु ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम नृते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुताशिने नमः ओम कुष्ठवर्तवे नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेत प्रसाद षष्टिशतसहस्रान्युतमक्षयमद्भुतमानय अयन्ते इद्मा आत्मजातवेदसे नियतस्व वर्धस्वचे वर्धे चासं प्रजा पशुभिर्ब्रह्मचसेन अन्नाद्यन ब्रह्मन् सोमन् यद्वमादस्ते अधस्वः वायुद्यादाग्ने यन्तं प्रजापतिः स्वः नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वः ओम अग्नये स्वः ओम सोमाय स्वः ओम अग्निशमोभ्यां स्वः ओम प्रजापतिः स्वः ओम इंद्राय स्वः ओम वसुभ्यः स्वः ओम मरुद्भ्यः स्वः ओम रुद्रेभ्यः स्वः अपस्पुर्ष्य ओम विष्णवे स्वः बृहस्पतिः स्वः ओम मित्राय स्वः ओम वरुणाय स्वः ओम आदित्येभ्यः स्वः ओम अश्वेभ्यः स्वः पूष्णे स्वः कक्षाय स्वः ओम कक्षदेवत सोमाय स्वाहा ओम औपासव यज्ञाय स्वाहा यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा दर्भाविगार्याचरं सावित्रीं गृहीत्वा व्याहृतिं ज्योतिप्रदविगार्यां भूस्वा भुवस्वा उगमस्वा भूभुवस्व स्वाहा अदितेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवसवितप्रासाभ्यास्य देवदेवसत्रे श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं तर्वलोकितार्थं करिष्यामः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि स्व आघारे स्वर मंत्र अक्षर सर्वदोष प्राचित्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसवा मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यां ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरात् तग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागुं सस्य विन्धते विष्णोर्यत्परां पदग्गु स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भुवस्वाहा अतिथेन ममग्गुस्तः अनुमतेन ममग्गुस्तः सरस्वतेन ममग्गुस्तः देवसवितप्रासाभिः अग्निप्रतिष्ठापनमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु
చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిత్తురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. భృగుమరీ చిత్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వా శ్రీ కుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసార మఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి. భువనే గురుం ప్రసన్నం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమీం పృథివ్యాపహత్తేజో వాయు ఆకాశహంకారమహత్తవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్వానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యష్టదిగ్దంత శుండాతండో తంబితే అమరావతీ తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరిత్య వర్ణవాయుభ్యేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవనేక్షు సురాసర్పి దిదిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మద్రుక్షవత్తి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారే లావృత భద్రాశ్వకేతకమాలా
हिरण्यकरमणक कुरु वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरु ताम्र गवस्ति पुन्नाग गन्धर्वसोऽव्य वरुण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतम कावेर्याणां मध्यप्रेसे आदिवरः क्षेत्रे श्रीवेङ्कटाचले श्री श्रीनिवासस्वामी भगवदालये समस्त भागवत आचार्याणां सन्निधौ सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमेहनि द्वितीययामि त्रयोदश घटिका 24 घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिव प्रलय कूर्मानन्त श्वेतवरः ब्रह्म सावित्राख्या सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभुव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत चाक्षुषा वैवस्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र एकसप्ततिमहायुगानां 27 महायुगेष्व अतीतेषु तदुपरि 28 भागे 28 सहस्रान्वित 17 लक्षाब्दे कृतयुगे याते 96 सहस्रान्वित 12 लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते 64 सहस्रान्वित 8 लक्षाब्दे द्वापरयुगे याते 32 सहस्रान्वित 4 लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क्य शालिवाहन विजय अभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहनसके अस्मिन् देशे शुभ मुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतच्छनपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहिताधमतपसङ्घात कलसूत्रादि विविधेभ्यो घोरेभ्यो नरकेभ्य उत्तीर्याम् तिले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुटराशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकिक मम अपकर्षणक्रमिण सर्वरास अपकर्षण संहिताकाले महाविष्णुलोके निवासित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र अप्त्योर्यम शान्तपन वाजपेय पौण्डरिक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसीत्यर्थम् लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम् परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चास्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिर्युक्त गुरुह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलाभाप्त्यर्थं षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सालंकृत कन्यका दानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुत धर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य विभाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम
आंगेरस बर्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य जगत्कारिण भूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेरस बर्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चवतर रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेरस बर्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याशोभिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्गजुस्साम अधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवचवण आप्नुवान और्ववेदल पंचाऋषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः वक्षस्थल निवासीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतर्यां भार्गवें अयोनिजां श्रीदेवे नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्गजस्सामा धर्मसकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित काश्यपश गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौन्दर्यवतीं बहुश्यामलांगे विष्णोः पुराणमहिषीं प्रकृति अंश संभूतां रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां काश्यपें अयोनिजां भूदेवे नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणेरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षा कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धये विश्वंभरा सर्वभूता साक्षिणा सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्त सुमुहूर्तो भान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितम् अस्तु तथास्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். சசங்க சக்கரம் சகிரீட்ட குண்டலம் சபீத வஸ்தரம் சரசீரு ஹேக்ஷணம் சஹார வக்ஷஸ்தல சோபி கௌஸ்துபம் நமாமி விஷ்ணும் சிரசா சதுர்புஜம் என்று அந்த சங்கும் சக்கரமும் தாங்கியவராய், முடியும் குண்டலமும் அணிந்தவராய், பொன்னாடை உடுத்தியவராய், தாமரை கண்ணராய், மாலை அணிந்த மார்பில் கௌஸ்துபம் ஒளி வீசுபவராய், 4 திருக்கரங்களுடன் விளங்கும் விஷ்ணுவை வணங்குகிறேன் என்று இதோ நாம் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை ஸ்ரீதேவி தாய்மாருக்கும் பூதேவி தாய்மாருக்கும் சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி.
கோணலை நிமிர்த்திய கோவிந்தன். அதாவது வீதியோரத்தில் ஒரு மரப்பலகையின் மீது ஒரு கூன் விழுந்த ஒரு பெண்மணி தன் கைகளில் வண்ண வண்ண 2 மலர்களை மாலையாக தொடுத்து வைத்து கொண்டுள்ளாள். முகம் கோணல், உடல் கோணல், கால்கள் முற்றிலும் ஊனம் கொண்டுள்ள காஞ்சனமாலா என்ற மங்கைதான் அவள். மதுராபுரிக்கு பால், தயிர், வெண்ணெய் ஆகியவைகளை விநியோகித்து கொண்டிருக்கும் கோகுலத்திலிருந்து 2 சிறுவர்கள் வரப்போவதாக கேள்விப்பட்டிருந்தாள் காஞ்சனமாலா. சின்னவனான நந்தகுமாரின் பால்ய லீலைகளை அவள் மனதிலே ஓடின. இளம் குழந்தையாய் இருந்தபோது யாதவ பெண் போல உருமாறி அந்த குழந்தையின் உயிரை குடிக்க வந்த பூதகியின் உயிரை குடித்த அற்புத குழந்தை காஞ்சனமாலாவின் கண்களில் தவழ்ந்து விளையாடியது. 1 வயது குழந்தையாக இருந்தபோது தன்னை கொல்ல வந்த சகடாசுரன் சின்னஞ்சிறு கால்களால் உதைத்து கொன்ற அந்த பால் மனம் மாறாத பாலகனை தன் கண்களால் கற்பனை செய்து கொண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் காஞ்சனமாலா. ஓடி ஆடி விளையாடி கொண்டிருக்கும் யசோதையின் மைந்தன் தன் சிநேகிதர்களையும் அந்த ஊர் மக்களையும் பெரும் மழையிலிருந்து காப்பாற்ற தன் சிறு விரலால் ஒரு குன்றையே குடையாக்கி தூக்கி பிடித்த கிரிதர கோபாலனின் கருணை வெள்ளத்தில் தன்னை மூடி கழித்து கொண்டான். யமுனையை விஷமாக்கி கொண்டிருந்த காளிங்கனின் தலைமேல் நர்த்தனமாடிய நந்த குமாரனை தான் பார்க்க போகிறோம் என்ற நினைவில் தனக்குள் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையையே வளர்த்து கொண்டான். மதுராபுரியின் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மாலினி என்ற பெண்மணியின் ஒரே பெண்தான் காஞ்சனமாலா. பக்தர்களே, அரண்மனை யானை பாகலின் மகன் வாரணமித்திரனுக்கு 12 வயதிலேயே திருமணம் செய்து வைத்தான் அவன் தாயார் மாலினி. காஞ்சனமாலாவிற்கு அந்த வயதில் விஷய காய்ச்சல் ஒன்று வந்தது. அதன் மூலமாக அவனது 2 கால்களும் வில் போல் வளைந்து கோணலாகியது. உடலில் கூன் விழுந்த மார்பும் வயிறும் ஒட்டி கொண்டது போல ஆகிவிட்டன. வாயும் கோணலாகிவிட்டது. இப்படி உடம்பில் 3 கோணல்களுடன் உயிர் பிழைத்தால் இவளை அனைவரும் பார்க்கும்போது திரிவிக்ரா என்று அழைப்பார்கள். திருமணம் செய்து கொண்ட வாரணமித்திரன் அவளோடு வாழாமல் வேறு ஒருத்தியை திருமணம் செய்து கொண்டான். மாலினி தன் மகளுக்கு வாசனாதி திரவியங்களை கலந்து வாசனை திரவியங்களை தயார் செய்யவும் வண்ண வண்ண மலர்களால் அழகான பூ மாலைகளையும் உருவாக்கும் கலையையும் சொல்லிக் கொடுத்தாள். அவலட்சணமாய் காட்சியளிக்கும் திருவிக்ராவை அனைவரும் கேலி செய்வார்கள். ஆனால் வாசனை திரவியங்கள் வேண்டுமானால் அவளைத்தான் நாடி செல்வார்கள். திருவிக்ரா தன்னுடைய இந்த நிலையை அவ்வப்போது நினைத்து பார்த்து மருகிப்போய் பகவானை பிரார்த்தனை செய்து கொள்வாள். தான் மறுபடியும் அழகிய மங்கையாக மாறி தன்னை ஒதுக்கிய வாரணமித்திரன் மற்றும் மக்கள் முன்பும் நடமாடி அவர்கள் வெட்கி தலை குனியும் படியான ஒரு நாள் வரும் என எதிர்பார்த்தே கொண்டிருந்தாள் திருவிக்ரா. கோகுலத்தில் உள்ள யசோதையின் மகன் கிருஷ்ணன் நிச்சயமாக தெய்வமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தேவகியின் 8வது மைந்தன் வசுதேவனின் புத்திரன் அல்லவா? கம்சன் வதம் செய்ய வந்தவன் கோபாலன் பலராமனும் உடன் வர ராஜவீதியில் கம்பீரமாக வந்து கொண்டிருந்தார்கள். மலர்ச்சரம் விற்கும் என் சகோதரியே, உன் பெயர் என்ன என்று கேட்க திருவிக்ரா என்றாளாம். அது காரண பெயர். உன் பெயர் என்னவென்று கேட்டான் கண்ணன் என்றாளாம். என் பெயர் காஞ்சனமாலா என்றாளாம். அழகான பெயருக்கு ஏற்ற கண்கள் என்றானாம். ஒரு மாலையை எடுத்து அவள் முன் நீட்டி எழுந்து நின் என்றானாம். உடனே வளைந்திருந்த கால்கள் நேராக மாறி அவள் நின்றாள். என் கண்களை பார் என்றானாள். காஞ்சனா என்றால் உடனே அவள் கண்களில் ஒளி நன்றாக தெரிந்தது. யசோதை பாலா, நந்தகுமாரா, தேவகி மைந்தா, வாசுதேவா, கண்ணா என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாதங்களில் சரணமடைந்தாள். இவ்வாறாக காஞ்சனமாலாவிற்கு அருள் புரிந்த கண்ணனாகிய எம்பெருமான் திருவெங்கடத்து முடையான் இதோ நமக்கு திருக்கல்யாண வைபவத்திலே மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, நாமும் கூட பகவானை பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் பூஜித்து தியானித்தால் நிச்சயம் அந்த பகவான் நமக்கு அருள் புரிவார் என்பது ஐதீகம். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி கல்யாணத்தில் அதோ மாங்கல்யத்திற்கு ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்த பின்பு அந்த மாங்கல்யத்திற்கு இப்படி நறுமணமிக்க பொருட்களால் பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு
அந்த மாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே ரக்ஷ என்று பகவானை இரு கரம் கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி சேவிப்போம். இதோ இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்ய தாரணம். अत माङ्गल्यधारण सुमुहूर्तकालः ॐ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् प्रजापतिः सोमगुं राजा नमस्सृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री श्रिये जातश्रिय आनिरेयाय श्रियं चरितृभ्यो दधाति त्र्यम्बसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सनिता वितत्रो श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि ॐ माङ्गल्यं तन्तुनानेन जीवरक्षकहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् प्रजापतिः सोमगुं राजा नमस्सृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी महीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ఎటువంటి మోహము ఈతెకు నాతని నీదా
सर्वास उग्र सखि हव्यो बभूव स्वः चित्तं च स्वः चित्ति च स्वः आकोतं च स्वः आकोति च स्वः विज्ञातं च स्वः विज्ञानं च स्वः मनश्च स्वः सकरिच्च स्वः दरसच्च स्वः पूर्णमासच्च स्वः बृहच्च स्वः रथन्तरं स्वः विष्णवे स्वः महाविष्णवे स्वः सदा विष्णवे स्वः पुरुषाय स्वः सत्याय स्वः अच्युताय स्वः निरुद्धाय स्वः ओं श्रेय स्वः धृते स्वः पवित्रे स्वः प्रबोधारिणी स्वः ओं हरिण्ये स्वः पौष्टे स्वः क्षोण्ये स्वः ओं मह्ये स्वः भूस्वः ओं भवस्वः ओं सुवस्वः भुवस्वः अदितेन मम गुस्ता अनुमतेन मम गुस्ता सरस्वतेन मम गुस्ता देव प्रसादे सदेव देव सत्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तर्वलोकहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवकर्मणि लाजो होमं कर्षे अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवितप्रस्व इमां लाजानमभिगार्य इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरदान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्भिरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वः ओं भुवस्वः ओं सुवस्वः भूर्भुवस्वस्वः दितेन मम गुस्थानुमतेन मम गुस्थां सरस्वतेन मम गुस्थदेव प्रसादस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तर्वलोकहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवकर्मणि सर्वदोष पराचित्ताब्दं वैष्णवं करिष्ये दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवितप्रस्व ओं अतो देवावन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तताम विश्वः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते ब्रह्मसपुरमस्य पाकं श्री स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्याततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्य तयतो व्रतानि पस्पथे इन्द्रस्य युज्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुराततग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्यबिन्धुते विष्णोर्यत्परं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवप्रसादे सदेव श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तर्वलोकहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवकर्मणि कर्मसात् गुण्यादम् उपृष्ट अन्तहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवितप्रस्व एतस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यनाकम् अग्निष्ठस्विष्टकुर्द्विद्वान् सर्वगुं स्विष्टगुं सुहुतं करोति मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीनां कामान् अग्निसबद्धैत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनाथाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतभुष्वे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो विन्ताभूदग्निस्तत्तु पुनरार्जातवेद विचार शनिस्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना एवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशरिष्टेभ्यः स्वाहा देशेन्दुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा दौराद्य स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुध्ये स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा वेदोऽस्ते दिशि महिस्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य देमहे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य देमहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य देमहे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्देमहे प्राणमे पाहि स्वाहा ब्रह्मणि देमहे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वा जन्ति सप्त योनिरा पुषस्वा गुरुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् अष्टगुतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदिर्भुक्तगुस्वाहा द्योर्भुक्तगुस्वाहा पृथिवीर्भुक्तगुस्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वा अप्सराश्च भुक्तगुस्वाहा
अग्निर्जीर्ण कृस्वा वेदिर्जीर्ण कृस्वा ज्योर्जीर्ण कृस्वा पृथिवीजीर्ण कृस्वा ओषधि वनस्पति गंधर्वा अप्सरसैव जीर्ण कृस्वा अत पूर्णाधिकार मुहूर्तः समिन्द्रिय विश्वे देवे वरन्तं दिव्यमनवो गच्छतो यत् स्वाहा आदिशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाधिकार मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिथिर्ममुद्गुस्तः अनुमतिर्ममुद्गुस्तः सरस्वतीर्ममुद्गुस्तः देवतप्रासवे सर्वदेवान् यदा स्थलं प्रवेशयामि पवित्र से पवित्र में भूयस्व पूर्ण से पूर्ण में भूयस्व सत्य सर्व में भूयस्व सर्व में भूयस्व अक्षितमक्षित्येचो में अक्षितमस्यमा में चेष्टः प्राच्यांत क्षराय प्रतीच्य उदीच्य ऊर्ध्वम् अतोतर आपोष्टा वयोभः पश्चिमतो विष्णु सर्वते दक्षिणतो विष्णु सर्वते उत्तरतो विष्णु सर्वते प्राच्यां विष्णु सर्वसे सर्वाङ्कुचां ग्रन्थिं विसृज्य अपस्पृश्य प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवङ्गच्च ततो नो वृष्टिमेर्यस्वाहा शुद्ध्यन्तां ते वसुदर्गं शुद्ध्यन्तां ते वसुदरं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्त्योद्भूतिः आदित्यस्सो भो नमः त्रयाशं जबदग्ने कश्यपशत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोष्ठामयो भवः त्रयाशं जबदग्ने कश्यपशत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् ओम दीर्घायित्वाय फलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयाशम् अपोष्टामयो भवः ओं च मे स्वरच्च मे यज्ञोपचते नमश्चैत्ते न्यूनं तस्मैदोपयत्ते तिरिक्तं तस्मैते महाभारतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रिं वा वचरद्धारोपाग्ने चात्रस्य भगवान् पुरोज्वलितोर्मा यत्ते अग्ने तेजस्त्रहं तेजस्वी भूयसं यत्ते अग्ने वर्चस्थिरं वर्चस्वी भूयसं मयि वेदां मयि प्रजं मयि तेजो मयि मेदं मयि प्रजं मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेदं मयि मयि सूर्योभ्राजो ददातु ओम सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणेन सोमेन पुनःपाद्याचं स्वरूपमेतास्थानमेतस्मिन् प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय गुडोभारं समर्पयामि आज्यशेषं समर्पयामि नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमाह्वने महादेव्यै नमः काण्डद्वयोपातिकर्मं ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेश नमः यज्ञेश च गोविन्दा माधवानन्तकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्ते यत्र ब्रह्मादेव देवास्तत्र गच्छ हुतासने यज्ञेश्वरं यदास्थानं प्रवेशयामि ओं कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओम स्वस्ति श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं फलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनाय यस्य स्मृत्या च नामोक्त्वा तपोहोमक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्ते हुतासनां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनां यद्दुतं तं मया देवा परिपूर्णं तस्ते मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कोटिकृतं भवेत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः ॐ सर्वं श्रीभूमिनिवासमेत श्रीश्रीनिवासार्पितमस्तु நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ராஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாஹுதியுடன் பூஜை பூர்த்தி செய்தார். இனி அடுத்த கைங்கரியமாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். வாரணமாயிரம் சுலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றனான் என்றதீர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் நாட்ட கணா கண்டேன் தோழினான் என்றபடி தோழி கல்யாண குணங்கள் நிறைந்தவனான நாராயணமூர்த்தி 1000 யானைகள்
சூழ்ந்து வர எழுந்தருளி வலம் வருகிறான் என்று அவனை வரவேற்று எதிரே பொன்னாலான பூரண குடம் வைத்து நகரம் முழுவதும் தோரண கம்பங்கள் நாட்டி அலங்கரிக்கும் இந்நிலையில் நான் கனவில் கண்டு கழித்தேன் என்று சொன்னியபடியே இந்த வாரணமாயிர கைங்கரியத்தில் தேங்காய் உருட்டுதல் போன்ற கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோதையை திருமணம் செய்து கொள்ள கோவிந்தன் மணக்கோலம் கொண்டு வருகிறான். அப்படி வரும்போது அவனை சுற்றி 1000 யானைகள் உடன் வருகின்றன. அவனை அந்த ஊரே பூரண கும்ப மரியாதையுடன் வரவேற்கிறது. இவ்வாறு கண்ணன் மணப்பந்தலுக்கு வரும் அழகையும் கம்பீரத்தையும் தோழியிடம் சொல்லி பூரிக்கிறாள் கோதை. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ஆண்டார் கோதை நாச்சியார் பாசுரங்களிலே வாரணமாயிரம் பாசுரத்தை பாடிக்கொண்டே தேங்காய் உருட்டுதல் போன்ற கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியமாக மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தனம். மாலை மாற்றுதல் என்பது திருமணச் சடங்கில் மணமக்கள் இருவரும் ஒரு மனமாகி இரு வாழ்க்கையை தொடங்க ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரு புனிதமான நிகழ்வாகும். இது இரு மனங்களை இணைக்கும் அடையாளமாகும். உற்றார் உறவினார் முன்னிலையில் மணமகன் மணமகள் 3 முறை மாலை மாற்றிக்கொள்ளும் சடங்கு இருவரும் ஒருவரே என்பதை உணர்த்துகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை இதோ நாம் மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய கல்யாண வைபவத்திலே செவித்து கொண்டுள்ளோம். மணமகன் தாலி கட்டிய பின் மணமகள் எழுந்து நின்று வடக்கு நோக்கி இறைவனை தியானித்து மணமகனுக்கு மாலை சூட்டுவார். பின்னர் மணமகன் மணமகளை தன் இடப்பக்கத்தில் அமரச் செய்து மாலை சூட்டுவான். இது கலந்து மணத்தல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த கைங்கரியத்தை இதோ நாம் திருக்கல்யாண வைபவத்திலே சேவிப்போம். முதலில் பரந்தாமன் சூடிய மலர் மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய மலர் மாலையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து மலையப்ப சுவாமிக்கே அணிவித்தார். மலையப்ப சுவாமிக்கு அணிவித்த மாலையானது பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா? இதோ அந்த பூதேவி தாயாருக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மலர் மாலையை சமர்ப்பித்தார். கண்ணனின் மலமாலைக்காக காத்திருந்த அவள் பொறுமையின் பூஷணம். அப்படிப்பட்ட அந்த பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த மாலையானது திரும்பவும் கொண்டு வந்து பகவானுக்கே சமர்ப்பித்து இப்படி 3 முறை மாலை மாற்றியாகிவிட்டது. மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இதோ அடுத்த கைங்கரியம் செவிக்க உள்ளோம். அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இதை தொடர்ந்து தலம்பராள் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ராமா கோவிந்தா கோவிந்தா ராமா கிருஷ்ணா என்று பகவானுடைய திவ்ய நாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே இந்த கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை. இதை தொடர்ந்து தலம்பராள் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன். ஹரே ஸ்ரீனிவாசன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.